टीचर्स नॉलेज डोमेन्स। टीचर्स नॉलेज डोमेन्स की बात हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन अब तफसीली तौर पे देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय टीचर्स नॉलेज डोमेन्स एंड हाउ डज अ टीचर्स नॉलेज डोमेन prevent misbehaviors in the classroom, and how is this a very important tool for preventive management. Knowledge domains हैं क्या? सबसे पहले तो content knowledge है, that is a big domain. The subject area of the teacher. इसका मतलब ये है कि जो टीचर है, is she proficient in her own content knowledge or not? In order to teach well in the classroom, it is extremely important to have proper content knowledge. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टीचर से ऐसे सवालात करते हैं कि टीचर के पास उसका जवाब नहीं होता. इसका एक कॉन्सिक्वेंस तो ये होता है that students consider that the teacher is not well prepared. And when they consider that the teacher is not well prepared, then they can create classroom management problems. So, it is extremely important for a teacher to have adequate content knowledge. टीचर चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रही है, चाहे वो उर्दू पढ़ा रही है, चाहे वो साइंस, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट एरिया के साथ डील कर रही है, it is extremely important to have fair knowledge of the subject area that he or she is teaching. Content knowledge is of prime importance. अगर content knowledge नहीं है, तो lesson plan जो है, वो बेहतर तरीके के साथ unfold नहीं हो सकता. तो content knowledge का होना बहुत जरूरी है. इसके साथ मैनेजमेंट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. हम पिछली स्लाइड्स में क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात करते रहे हैं, स्ट्रेटजीज की बात करते रहे हैं. तो टीचर के लिए ये स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस का जानना बेहद जरूरी है. अनलेस अ टीचर नोज हाउ टू हैंडल मैनेजमेंट इशू इन द क्लासरूम, शी विल बी एट अ लॉस इन केस देयर इज अ मैनेजमेंट इशू इन द क्लासरूम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मैनेजमेंट नॉलेज इन द क्लासरूम. हम जब टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, तो हमें मैनेजमेंट नॉलेज को उसका एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए. आमतौर पर हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो पेडागोजिकल नॉलेज है. इन मोस्ट ऑफ द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन मोस्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, पेडागोजिकल नॉलेज इज स्ट्रेस्ड द मोस्ट बिकॉज इट इज थॉट दैट व्हाट टीचर्स लैक इन इज पेडागोजी. लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं that together with pedagogy, there are other issues that need to be tackled. So, pedagogical knowledge is important, no doubt. Together with it, management knowledge is important and content knowledge is important. और इसके अलावा एक और बहुत important knowledge है और वो social emotional knowledge है. A teacher needs to be behaviorally upright in order to teach in the classroom. A teacher needs to be full of emotions and feelings. She should feel about her students. She should consider that students have feelings, they have emotions, and those have to be considered in the classroom. Teacher जो है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है देखना कि वो इन तमाम knowledge domains को बरूए कार लाते हुए classroom teaching करे. Because even if one is compromised, the lesson is affected. When we are talking about one lesson, we are talking basically about all the knowledge domains that are listed here. It is extremely important, मैं एक दफा फिर से बताती चलूं, that content knowledge is extremely important together with pedagogical knowledge, management knowledge and social emotional knowledge. और इन चारों का इस्तेमाल कर कर ही we can have well disciplined classrooms. आमतौर पर ये देखा जाता है that teachers they focus a lot on having interactive lesson plans. अब इंटरएक्टिव लेसन प्लान्स बन तो जाते हैं जिसमें ग्रुप वर्क भी है, जिसमें टास्क बेस्ड लर्निंग भी है, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है? हाउ डज अ टीचर हैंडल टास्क बेस्ड लर्निंग इन द क्लासरूम? हाउ डज अ टीचर मैनेज ग्रुप वर्क इन अ क्लासरूम? उसके लिए मैनेजमेंट नॉलेज का होना जरूरी है, टुगेदर विद पेडागोजिकल नॉलेज. इफ देयर इज अ लेक्चर which is prepared by a teacher in the classroom and the students are supposed to listen to those lectures followed by question answers, so उसमें content knowledge का होना बहुत जरूरी है. Unless or until a teacher is fully prepared to deliver a lecture and fully prepared about the content knowledge, she will not be able to deliver a good lesson. इसके अलावा अगर
कोई स्लाइट भी डिस्ट्रप्शन होती है क्लास में या स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरह बिहेव नहीं करते जैसे कि उनको करना चाहिए, तो उसमें फिर सोशल इमोशनल नॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। दैट हाउ डज अ टीचर मेक यूज ऑफ हर सोशल इमोशनल नॉलेज टू हैंडल क्लासरूम बेस्ड इश्यूज। तो इसलिए ये 4 जो नॉलेज डोमेन्स हैं, इनका सामने आना बहुत जरूरी है। तो जब हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं, जब हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं, जब हम टीचर्स के लिए कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, तो हमें ये चीज का जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 4 डोमेन्स हैं, इनको हम स्प्रेड आउट करें इन ऑल द प्रोग्राम्स सो दैट टीचर कैन नो दैट दीज 4 डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। आमतौर पर हम किसी एक डोमेन के ऊपर फोकस कर जाते हैं और बाकी डोमेन्स को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और अगर हम ये करते हैं तो फिर वी कैन हैव इनइफेक्टिव लेसन प्लान।